can you give a little bit of introduction about yourself? Yeah, myself, Piyush Ramankar. I'm currently student in BCA second year, studying in the College of Life. Where are you located? Right, Hello. Raipur, ma'am, Raipur. Okay. Uh, okay. So, do you have any knowledge about any programming language? Mm, Yeah, I know HTML and CSS. Okay. Yes. And any other C, C++, etc.? Yeah, a little bit of C. I started, but I never entered it actually. Okay. So, you are in the second year of BSc or BCS? Yes, yes, ma'am. BCA. BCS. Okay. And Uh, what are the current, BCA. sorry, BCA, ma'am, BCA. BCA. Okay. And what are the current technologies you have in your syllabus? OS, operating system, previous, and currently they are teaching us web development also. So we just started HTML in college, currently my college now. Okay. And I I just have want learned, to know that why you want to learn. Is there any requirement in your syllabus itself, or you want to learn it for any other purpose like job or anything else? no, actually there isn't any requirement, but I want to learn it because I have an interest in Java programming and looking further to gain new skills, etc. Okay, fine. So I will give my little bit of introduction. So my name is Aditi. I'm taking online sessions for you for of Java, core Java. Okay, with all the practical part also. Um, I am working as a trainer since long. So if you have any doubt, let me clear first few things. So if you have any doubt, you can ask in the session. If you are not able to understand anything, you can ask again. I will explain that thing. If later on, if you see the recordings and if you are having any doubt, you can ask later also in the next session. Okay. So this will be the pattern. So Okay. don't because you don't know much of the programming languages. So sometimes it will feel that you don't understand these concepts very clearly because these are directly we are starting with the programming concepts. Okay. So I will teach you from the scratch, but still sometimes you will feel that you may not be able to understand some points clearly. Then you can ask that again so that don't keep any doubt with you. Just ask it. I will clear it. Okay. Okay, ma'am. Okay. So let's start. So first we are going to see why there is a need of any programming languages. Your Java course is basically divided into different modules. We will see one by one modules. Okay. So first we are going to see the first module, that is Java overview. What are the different characteristics of Java programming language, history and origin with comparison with other languages, why we choose Java, and some main part, that is introduction to JVM, which is important for your programming. Okay. So first of all, we will see why we need any programming language. Why we need any programming language. So as you don't know anything about the programming language, I will try to explain it. So do you know what type of language computer understands? You must have learned a little bit of it. You must have heard anything about it. Do you know what or which language computer understands? Anything about it? 0 and 1. Yes, right. But we have a specific word for that. That is a binary language. Okay. So it understands the machine code or binary language that is into 0 and 1 format. So if we are Acha, communicating, by yes. the way, ma'am, can you teach in Hindi? I think it will be better for me to understand.
Okay, so you want in Hindi, then okay, no problem. But try to cope up Yeah. with the English also, because in interview, most of the time they ask in English itself. Okay, I will teach in Hindi, no Okay, I problem with that. will. Okay, Okay. तो अभी जो हमने देखा कि बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट इनटू 0 and 1 फॉर्मेट. सो अगर मैंने आपको बोला कि आपको नेम बताना है 0 and 1 का, 0 and 1 में मैंने अगर आपको बोला कि आपको आपका नेम बताना है, आपका नाम बताना है, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू? ये पॉसिबल है क्या आपको? नहीं, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है क्या 0 and 1 फॉर्मेट में अगर आपका नेम लिखना है? तो नहीं आएगा, राइट? करेक्ट. तो वैसे ही कंप्यूटर को भी हमारी लैंग्वेज, जो कि हम जो बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाए, फॉर एग्जांपल साउथ में जाएंगे, ठीक है, तो अगर हमने साउथ में गए तो साउथ की लैंग्वेजेस अलग रहती है. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड दी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, तो उनको हिंदी भी नहीं आती है. तो उस टाइम आप उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या लगता है, कोई तो एक मीडिएटर लगेगा. एंड वो मीडिएटर का काम क्या होगा कि जब भी आप जो भी आपको ट्रांसलेट करके बताना है, वो आप उस ट्रांसलेटर को बताओगे, मीडिएटर को बताओगे, वो आपके स्टेटमेंट का ट्रांसलेट करके नेक्स्ट वाले स्टेट जो भी पर्सन है उसके साथ बात करेगा, राइट? अगर अगर उनको कोई भी इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, तो हमें कुछ एक बीच में निकालना पड़ता है रास्ता, राइट? सिमिलरली यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो वही काम करते हैं जो इंटरमीडिएटर करता है या फिर ट्रांसलेटर करता है. क्या होता है बेसिकली? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर क्यों होती है? तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमें करना है, वो आपका स्टेटमेंट, जो भी आपको आउटपुट चाहिए, एप्लीकेशन बनाना है, वो सारे एप्लीकेशन हमें हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखने हैं. बट वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से कन्वर्ट होने चाहिए कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में. एंड जो भी कंप्यूटर कंप्यूटेशन करके आपको जो आउटपुट देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, सो अगर एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन के लिए मैंने 2 नंबर्स इनपुट किए, 2 नंबर्स का एडिशन होके मुझे आउटपुट दिख रहा है. अगर वो उसने 0 1 फॉर्मेट में आपको आउटपुट दिखाया तो नहीं चलेगा, राइट? सो सिमिलरली अगर हमें अपने फॉर्मेट में जाके, दैट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए दोनों पर्पज से, मतलब ट्रांसलेटर के तौर पे हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगते हैं. सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट. जो भी आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जो भी आपको कोड करना है वो कर सकते हो, जो हमें अंडरस्टैंडेबल रहेगा एज अ ह्यूमन. एंड कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो. देर आर मल्टीपल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपका प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट करते हैं एंड कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें कन्वर्ट करेगा 0 1 फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, एंड आपको आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट कंसिडर करके देगा और कैलकुलेट करके देगा, ठीक है? तो दिस इज why we need Java or any programming languages. So there are multiple programming languages. जैसे मैंने पूछा कि वैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, और अभी बहुत सारे आए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब सबसे पहले हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस थे, तो जो डायरेक्टली आपके इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर पे काम करते थे, ठीक है, जो हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिखते थे, जो काम करेंगे आपके इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, तो मदरबोर्ड में रजिस्टर्स रहते हैं जिसमें आप डेटा सेव करते हो, रैम रहती है, रोम रहती है, राइट? सो उस पे ही हम डायरेक्टली काम करते थे. उसके लिए हम यूज करते थे पहले असेंबली लैंग्वेजेस. इट इज अ हाईली इफिशिएंट प्रोग्राम के लिए हम असेंबली लैंग्वेजेस यूज करते हैं. आज भी यूज होता है असेंबली लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो ये जो होगा असेंबली लैंग्वेज इजी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर लर्न करने के लिए, या फिर अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आया, कोई जगह पे आपका कोड जो है वो फेल हो रहा है, उसको हम डिबगिंग कहते हैं, ठीक है? सो डिबगिंग असेंबली कोड में बहुत डिफिकल्ट होता है.
वो वहां पे हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से लाइन पे हमें एक एरर आ रहा है या फिर हमारा प्रोग्राम ब्रोक हो रहा है, ठीक है। सो ये एक असेंबली लैंग्वेजेस का डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो लैंग्वेज थी वो भी सिस्टम कोड के लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बट ये हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज करते थे फोर्ट्रन। उसके बाद थी बेसिक। बेसिक लैंग्वेज जो है वो आज भी, मतलब ये फोर्ट्रन बेसिक ये अभी भी यूज होते हैं, ऐसे नहीं कि यूज नहीं होते, बट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड उसका जो पर्पस है उसके हिसाब से हम, जिसका एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है उसके हिसाब से हम डिसाइड करें कि कौन से लैंग्वेज में करना है। सो बेसिक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लैंग्वेज। इट वॉज इजी टू लर्न, ये इजी थी बट इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं थे, ये सारे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस नहीं है, मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया है आपको एंड उसी को आपको यूज करके प्रोग्राम करना है, ऐसे नहीं था, ठीक है। एंड ये लार्ज प्रोग्राम्स के लिए भी ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये बेसिक के रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन, कोबोल इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज, ये सारे जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रिंसिपल्स पे डिजाइन नहीं किए थे, दैट मीन्स दीज आर नॉट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ओके। सो पास्कल लैंग्वेज थी जो स्ट्रक्चर्ड थी, बट वो इफिशियंट लैंग्वेज नहीं थी, मतलब उसको यूज करके हम ज्यादा अच्छे से एप्लीकेशंस नहीं डेवलप कर सकते थे। तो उस टाइम पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रन, बेसिक, असेंबली लैंग्वेजेस, दीज वर द लैंग्वेजेस विच वर प्रीवियसली वी वर यूजिंग फॉर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशंस, ठीक है, जो हम यूज करते थे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। बट नीड थी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हो, अच्छे से स्ट्रक्चर हो उसका, एंड उसको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं, जिसको हम इजीली लर्न कर सकते, इजीली प्रोग्राम कर सकते रादर देन यूजिंग द असेंबली कोड। असेंबली कोड से अच्छा हमें कुछ करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए हम इसको एक इफिशियंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी जो स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया जाएगा आपको एंड उसमें आपको पूरा कोड करना है। तो ये इस ड्रॉबैक की वजह से और इस नीड की वजह से सी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। सो सी लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज विच इज इन्वेंटेड इन द मॉडर्न प्रोग्रामिंग, ओके। सो सबसे पहले सी लैंग्वेज ही बॉर्न हुई है, पहले सी लैंग्वेज का ही इन्वेंशन हुआ है। उसके बेसिस के ऊपर जो सी लैंग्वेज थी, सो जिसको हम यूज करते हैं बाय मेनी, वी कैन डेवलप मेनी एप्लीकेशंस यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है। सो जहां से हमारा मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहां से हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। देन सी लैंग्वेज के कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? तो वो ड्रॉबैक है बेसिकली, अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक सर्टन प्रोजेक्ट की साइज जो होती है उसको एक सर्टन लिमिट तक ही वो हैंडल कर सकता है, या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो उसको भी वो हैंडल कर सकता है, जो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी पे ही वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स जो अराइज हुए सी लैंग्वेज में, उसको रिजॉल्व करने के लिए अगेन न्यू वे की जरूरत थी, जिस वे को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस वाज द वे, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस के ऊपर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, या फिर इस प्रिंसिपल को हम बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। तो एक न्यू वे ऑफ प्रोग्रामिंग उन्होंने इन्वेंट किया, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में उन्होंने इंक्लूड किया, एंड दैट इज नथिंग बट द एनहांसमेंट टू सी, एनहांसमेंट ऑफ सी लैंग्वेज नोन एज C++, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ मेथडोलॉजीज होती है, वो मेथडोलॉजीज और जो प्रिंसिपल्स है उसका यूज होता है हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो होते हैं बेसिकली इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इन तीनों का यूज करके, इन तीनों फीचर्स को ऐड करने के बाद C++ का इन्वेंशन हुआ, जो कि बेसिकली सी ही थी, बट उसमें सिर्फ ये तीन कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने ऐड किए
एंड उसको हम यूज कर सकते थे फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो C++ भी इन्वेंट हुआ, न्यू प्रोग्रामिंग वे भी इन्वेंट हुआ, तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशंस जो है वो उसका भी ड्रॉबैक्स है। द फर्स्ट एंड मेजर ड्रॉबैक इज these languages are designed to be compiled for specific target or these are known as platform dependent languages। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अभी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड है, विंडोज है, मैक ओएस है, ठीक है, और भी बाकी सारे यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। सो जब भी आप कोई कंप्यूटर खरीदते हो उसमें हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम विंडोज ही इंस्टॉल होता है। बट अगर किसी किसी को जरूरत है तो सर्वर्स के लिए वगैरह हम यूनिक्स यूज करते हैं, जिसका एप्पल सिस्टम होता है उसमें मैक ओएस इंस्टॉल होता है, अगर कोई मोबाइल है तो उसमें एंड्रॉइड ओएस इंस्टॉल होता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट टारगेट्स। अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया है सी एंड C++ में, जो हमने डेवलप किया है सपोज विंडोज पे, ठीक है, विंडोज पे डेवलप किया है, तो वो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ विंडोज सिस्टम पे ही चलेगा। वो सेम एप्लीकेशन आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर यूनिक्स पे या लिनक्स पे यूज नहीं कर सकते। दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द C++। तो हमें जरूरत थी कोई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कि आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, मतलब हमने अगर एक एप्लीकेशन डेवलप किया है तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क होना चाहिए, ऐसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी। दैट इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज और आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज। आर्किटेक्चर न्यूट्रल इज नथिंग बट वो भी सेम कंसेप्ट है, दैट इज आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह कुछ भी हो, आपका प्रोग्राम, आपका एप्लीकेशन वर्क होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज की जरूरत थी। एंड इसके लिए जो आपके एप्लीकेशन है, सच एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे एप्लीकेशन रन करना है, माइक्रोवेव ओवन में करना है, रिमोट कंट्रोल में करना है, तो ऐसे कोई एप्लीकेशन हो जो एप्लीकेशन एक ही होगा बट वो अलग अलग डिवाइसेस पे वर्क कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास LG की कोई भी टीवी हो या फ्रिज हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, आपके पास तीनों डिफरेंट LG के सिस्टम्स है, ठीक है, या फिर इक्विपमेंट्स आप बोल सकते हो, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और भी बहुत सारे चीजें हैं, तो उनमें वाईफाई आते हैं, ठीक है, तो वो वाईफाई जो होता है वो रिमोटली आप ऑपरेट कर सकते हो। सो सारे डिवाइसेस आप एक ही इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल, उसमें भी कोई एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल किए होंगे जो आपको इमीडिएटली आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, LG का हो गया, सैमसंग के भी इसमें ऐसा एक फीचर आता है। तो दिस इज नथिंग बट एक कोई एप्लीकेशन है जो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे काम करता है, जिसको आप एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल डिवाइसेस पे काम करता है। सो दिस वाज द नीड एंड इसके लिए जावा का क्रिएशन हुआ। ठीक है, सो व्हाट वाज द नीड फॉर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ जावा। ठीक है, तो मेन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर के लिए जावा का क्रिएशन हुआ है। So Java was conceived by James Gosling, Patrick Norton, Chris Worth, Ed Frank, and Mike Sheridan at Sun Microsystems (INC) in 1991. Okay. Initially उसका नाम ग्रीन टॉक था, ठीक है, जिसका फाइल एक्सटेंशन .gt था, बट लेटर ऑन उसका रीनेम किया गया, ग्रीन टॉक से ओक किया गया, बट जो ओक नेम था वो भी रीनेम किया गया जावा के साथ, and currently we are using the same name, that is Java, जो 1995 में रीनेम किया। तो ओक से जावा रीनेम क्यों किया गया, क्योंकि ओक टेक्नोलॉजीज का एक ट्रेडमार्क था एंड उसकी वजह से, उस ट्रेडमार्क के इशू की वजह से जावा नेम दिया गया एंड जावा ही हम अभी तक यूज कर रहे हैं। इन 1995 इट वाज इन गिवन द नेम। ओके, इन्वेंशन 1991 में हुआ है, जावा रीनेम हुआ है 1995 में। ठीक है, सो 1995 के आगे से हम अभी भी जावा ही यूज करते हैं। एनी डाउट टिल हियर, अंडरस्टूड यहाँ तक पीयूष, कुछ डाउट हाँ है मैम, यहाँ तक?
ज्यादा फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है? अगर No, कोई ma'am, क्लियर I नहीं understood है it. ऐसे तो बताओ। No, it's actually fine. ओके, सो एज आई सेड, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे उसका क्लास फाइल होता है। क्या होता है वो हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास फाइल जो है वो सेम क्लास फाइल अगर आप मैक ओएस पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, विंडोज के जेवीएम में एग्जीक्यूट कर सकते हो, लिनक्स के जेवीएम में एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। फाइल एक ही है बट आप उसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूशन कर सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग जगह पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट कंसेप्ट इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। इसकी जगह पे अगर सी और सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन होता तो इसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन बनाना पड़ता, विंडोज के लिए अलग रखना पड़ता, लिनक्स के लिए अलग रखना पड़ता। तो बेसिकली एक ही पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर आपको जो भी एप्लीकेशन आपने लिखा है अगर उसको आपको अलग अलग सिस्टम पे के ऊपर एग्जीक्यूशन करना है तो आपको तीन अलग अलग, यहाँ पे मैंने तीन के एग्जांपल्स दिए, तो तीन अलग अलग एप्लीकेशंस डेवलप करने पड़ते। तो इसकी जगह पे हमें अगर हम एक ही एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो वो अच्छा रहता है, एंड दैट इज व्हाई जावा इज मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज। एंड पहले से मतलब वहां जब 1995 में और 1991 से जावा जब भी इन्वेंशन हुआ है तब से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जावा में। एंड इसी मेन पर्पस की वजह से, इसी मेन फीचर की वजह से जावा आज भी उतना ही ज्यादा यूज होता है एंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज आज भी है। सो देयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ जावा। क्या फीचर्स है? तो सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एज आई सेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जो जावा लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज भी बेस्ड है इन प्रिंसिपल के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई वी से इट एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट इट इज नॉट कंप्लीट, इसमें हम जो भी करते हैं वो सारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में रहता है, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सेकेंड वन इज इट इज अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड वन इज इट इज अ सिंपल लैंग्वेज। इट इज डिजाइंड टू लर्न वेरी इजीली। किसी को भी ये लैंग्वेज अच्छे से आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्ट्रक्चर भी इजी है इसका प्रोग्रामिंग का, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। थर्ड वन इज सिक्योर्ड लैंग्वेज है। इट इज अ सिक्योर्ड लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स नाम का कंसेप्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा सेव करते हैं तो वो हम एड्रेस को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर्स यूज करते हैं। बट जावा में पॉइंटर्स हटा दिए गए हैं, एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होती है सी एंड सी प्लस प्लस में वो भी यहाँ पे नहीं है। दैट इज वाई दीज आर सिक्योर्ड लैंग्वेज, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे अगर आपको कोई एरर्स या फिर कोई बग्स आ रहे हैं आपके एप्लीकेशन में तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट्स दिए गए हैं, एंड दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। स्टिल नेक्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दैट। इट इज whatever the output we are getting from the application from different platforms will be same। मतलब अगर आप एप्लीकेशन कोई भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आउटपुट सेम ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं वो मेनली हमने डेवलप किया है मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इट इज द रोबस्ट लैंग्वेज, ठीक है। सो रोबस्ट क्यों बोलते हैं इसको रोबस्ट? तो इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स दिए गए हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल, नाउअडेज पोर्टेबल वर्ड इज यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए हम बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल रेडियो है, पोर्टेबल ये भी है डिवाइसेस है अलग अलग। मोबाइल इज ऑल्सो पोर्टेबल, राइट। पहले तो टेलीफोन होते थे जिसको आप साथ में लेके नहीं घूम सकते थे, बट मोबाइल इज पोर्टेबल। क्यों पोर्टेबल है? जिसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। चार्जर्स होते हैं उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं, राइट। ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं। क्यों पोर्टेबल बोलते हैं? तो उसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, यू कैन कैरी दैट एंड
use it, right? Same thing for Java also, portable, मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन डेवलप किया है, जो सोर्स कोड है आपका, उसकी जरूरत नहीं होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, ठीक है। तो उसको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्लास फाइल है उसको भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके जा सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ओके। सो दैट इज व्हाई it is known as portable language. Okay? Next one is architecture neutral language. Architecture neutral मतलब कंपाइलर जो फाइल जनरेट करता है, कंपाइलर एक फाइल जनरेट करता है, क्या करता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो कंपाइलर जनरेट फाइल, जो ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट है उसको हम आर्किटेक्चर न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि उसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको हम आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द डायनेमिक। इट इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। क्यों डायनेमिक है, क्योंकि ये जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आप अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के बाद डिजाइन, कोई भी डिजाइन आप अडेप्ट करके प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इट इज डिजाइन टू अडेप्ट टू एन इवॉल्विंग एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड, व्हाट इज मीन बाय इंटरप्रेटेड? तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम इसको क्यों बोलते हैं, उसमें हम जावा में एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, डिटेल में हम इसको बाद में देखने वाले हैं। तो इंटरप्रेटर मतलब जावा का बाइट कोड जो है, जो बाइट कोड हमें जनरेट होके मिलता है वो ऑन द फ्लाई, मतलब एट द एग्जीक्यूशन टाइम इटसेल्फ वो मशीन कोड में, मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा सा हार्ड जाएगा आपको अभी समझने के लिए, बट जब हम इंटरप्रेटर क्या होता है, ये बाइट कोड क्या होता है, वो कंसेप्ट समझेंगे तब आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि जावा का जो बाइट कोड है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शंस में, मतलब जो भी आपका मशीन इंस्ट्रक्शंस रहेगा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, बट ये एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। Piyush, you want to ask anything or shall we go ahead? No, continue. Okay. So next is high performance. This is a high performance language. ठीक है, तो high performance language क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कंपाइलर होता है, that is known as JIT compiler, just in time compiler, ठीक है। जो कि आपका just in time compiler का डिटेल यूज, क्या उसका काम क्या है, वर्क क्या है, वो हम JVM आर्किटेक्चर में देखेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि JIT कंपाइलर की वजह से जो भी आपका बाइट कोड है जो हमें हमेशा लगता है, वो उसको सेव करके रखता है एज अ कैशे मेमोरी, ठीक है। एंड उसको वो यूज करता है, दैट इज वाई एग्जीक्यूशन टाइम में थोड़ा सा, एग्जीक्यूशन के लिए टाइम कम लगता है, मेमोरी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होती है, दैट इज वाई वी से दैट दिस लैंग्वेज इज हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। नेक्स्ट इज इट इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। टू राइट एनी प्रोग्राम, ठीक है, जो मल्टीपल टास्क हमें करने हैं, वो मल्टीपल टास्क आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करके अलग अलग थ्रेड्स बना के साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसकी वजह से इसको हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लास्ट वन इज इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरनेट यू कैन से। तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में कहीं पे भी इंटरनेट के जैसे इसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो, दैट इज these are the different features of Java. There are 12 features we have seen. Apart from that, और भी बहुत सारे आप पढ़ सकते हो, बट ये बेसिक और मेन फीचर्स है जावा के, ठीक है। जावा के फीचर्स को हम जावा बज़वर्ड्स भी बोलते हैं। सो सिंपल वर्ड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिंपल, सिक्योर, रोबस्ट, पोर्टेबल, मल्टी-थ्रेडेड, distributed, architecture neutral, interpreted, high performance and dynamic. Any doubt? No, no. We can develop different types of applications using Java. So what are the different types of applications? So basically the basic requirement, अगर आपको सिर्फ एक ही सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हम डेस्कटॉप और GUI एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन,
ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, जिसको डेवलप करने के लिए जावा आपको प्रोवाइड करता है कुछ टेक्नोलॉजीज लाइक AWT, स्विंग, जावा FX, ठीक है, ये सारे प्रोवाइड करता है कुछ टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस यूज करते हैं। नाउअडेज स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस आर वेरी रेयर, क्योंकि बहुत कम टाइम हम इसको यूज करते हैं और डेवलप करते हैं, क्योंकि अभी सारा इंटरनेट का जमाना है, तो सारे एप्लीकेशंस जो है इंटरनेट पे वर्क होने वाले ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस को मोबाइल्स आप डेवलप कर सकते हो, जिसको हम मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, एंड्रॉयड भी एक लैंग्वेज है, तो एंड्रॉयड एंड जावा ME आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड्रॉयड भी आप यूज कर सकते हो, जावा ME इज द टेक्नोलॉजी, जावा का अलग वर्जन आता है जिसका यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। दीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन हुआ। अगर आपको जावा आया तो आप एंड्रॉयड भी इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए भी हम जावा का यूज करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स जो मोस्टली हार्डवेयर रिलेटेड, मतलब हार्डवेयर के इसमें हम यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। वेब एप्लीकेशंस, नाउअडेज वी यूज वेब एप्लीकेशंस इन अ वाइड रेंज, बहुत से टाइम से हम इसको यूज कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। अभी सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं वो वेब एप्लीकेशंस होते हैं। वेब एप्लीकेशन मतलब जो सर्वर साइड पे एंड क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होते हैं, जो डायनेमिक पेजेस क्रिएट करते हैं, इट्स कॉल्ड वेब एप्लीकेशन, जो इंटरनेट के ऊपर वर्क करते हैं या फिर एक सर्वर पे वर्क होते हैं, ठीक है। सो जावा प्रोवाइड सम टेक्नोलॉजीज लाइक सर्वलेट्स, JSP, JSF, ये टेक्नोलॉजीज यूज करके हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। सो जो वेबसाइट्स वगैरह रहते, या फिर कोई भी वेबसाइट आप यूज करते हो, जैसे गूगल है या फिर फेसबुक है, तो वो आपकी वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। वैसे ही वेब एप्लीकेशन आप भी डेवलप कर सकते हो यूजिंग जावा टेक्नोलॉजीज। एप्लीकेशन सर्वर्स भी आप डेवलप कर सकते हो, वेब सर्वर्स भी आप डेवलप कर सकते हो, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हो। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशंस है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज, क्योंकि बैंक तो एक ही है बट उसके अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस में बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स है, ठीक है, तो उसको पूरा हैंडल करना, सेंट्रलाइज डेटा रखना, ये सब कुछ एंटरप्राइज एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। फॉर एग्जांपल SBI है, SBI के ब्रांचेस बहुत जगह पे है बट बैंक तो एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, बैंक एक ही है, उसका हेडक्वार्टर एक ही जगह पे होगा, तो उनका सारे सारे ब्रांचेस का डेटा अगर आपको मैनेज करना है, सारे अकाउंट्स जितने भी है सारे ब्रांचेस से, तो उसको आप एक सेपरेट एप्लीकेशन यूज करोगे, उसको हम एप्लीकेशन फॉर एंटरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। देन साइंटिफिक एप्लीकेशंस आप इसके थ्रू डेवलप कर सकते हो यूजिंग दिस। देन बिग डेटा टेक्नोलॉजीज यू कैन यूज, ठीक है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बोला, एन एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ठीक है, सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन। इसके लिए हम यूज करते हैं एंटरप्राइज जावा बीन्स, ये टेक्नोलॉजी है जो जावा प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ठीक है। एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन का मैं बताना भूल गई, सॉरी। IRCTC, जावा टी पॉइंट, IBM, गूगल मैप्स, ये सारे जो है वेब एप्लीकेशन है। बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, आपने अभी बहुत बार सुना होगा बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। क्या होता है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज? हडूप इज द लैंग्वेज, ठीक है, हडूप यूज करते हैं हम बिग डेटा को मैनेज करने के लिए। तो आपको जब आप जावा लर्न करते हो तो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज हडूप भी आपको इजी जाता है लर्न करने के लिए। सो अगर आपने स्टडी किया जावा को तो आप बिग डेटा टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर सकते हो। देन बिजनेस एप्लीकेशंस, जो कोई भी बिजनेस के रिलेटेड एप्लीकेशन है वो भी आप डेवलप कर सकते हो यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। क्लियर टिल हियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. नाउ देयर आर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ जावा, ठीक है, मतलब वेरियस वर्जन्स है। सबसे पहले जावा इन्वेंट किया था, जैसे मैंने बोला, सन माइक्रोसिस्टम्स INC ने, ठीक है। सन माइक्रोसिस्टम्स ने जो भी जावा का इन्वेंशन किया था वो वर्जन्स थे, उसको हम जावा डेवलपमेंट किट JDK बोलते हैं।
जो 1.0 से 1.4 तक रिलीज हुए थे, ठीक है। ये सारे सन माइक्रो सिस्टम्स ने रिलीज किए थे। बट इन जनवरी 27 2010 ओरेकल कॉर्पोरेशन ने सन माइक्रो सिस्टम्स को टेक ओवर किया। सो नेक्स्ट वर्जन्स जो भी है हमारे करंट इज द ओरेकल कॉर्पोरेशन इज द ओनर ऑफ जावा, ठीक है। तो अभी ओरेकल कॉर्पोरेशन जावा का ओनर है, पहले सन माइक्रो सिस्टम्स था। सो सन माइक्रो सिस्टम्स ने जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किट दिया था उसको हम जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं। इसके वर्जन्स थे 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। सो 1.4 वाज लास्ट रिलीज्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। ओरेकल ने जब 2010 में उसको एक्वायर किया, टेक ओवर किया, उसके बाद जेडीके का नाम चेंज होके जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन दैट इज जावा एसई हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, बट सिर्फ नाम चेंज हुआ है। जो हमें डेवलपमेंट के लिए जो भी पार्ट लगता था एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, उसको ही उसने सिर्फ नाम चेंज किया है जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन। जहाँ पे हमारे 5th वर्जन से न्यू जावा के इन्वेंशन जो भी वर्जन रहेंगे वो रिलीज किए गए बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। करंट वर्जन इज 22, करंट जावा वर्जन इज जावा 22, जो रिलीज हुआ है मार्च 2024 में, ठीक है। हम 22 नहीं यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज मैक्सिमम ऑफ 11th और 17 आप डाउनलोड कर सकते हो। बट उसके आगे करंट वर्जन भी आपने डाउनलोड किया तो भी चलेगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी प्रोग्राम्स, ठीक है। उस लेवल तक अभी तक कोई भी कंपनीज या फिर कोई भी ये ज्यादा जेडीके 8 में ज्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं तो जेडीके 8 में या फिर 11 तक ही यूज करते हैं कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इतना 22 तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप 11 से हायर कोई भी जेडीके इंस्टॉलेशन कर सकते हो। डू यू हैव अ जेडीके इंस्टॉल्ड? आपके पास जेडीके इंस्टॉल्ड है? आपको पता है कैसे डाउनलोड करना है? This one? आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम्स करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हुआ है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं एक क्विक आपको बताऊंगी कि कैसे डाउनलोड करना है। नहीं है। नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि कैसे करना है डाउनलोड? हाँ, एक्टिविटी कभी सुना है या फिर कभी किया है कॉलेज में वगैरह कभी? जावा ना। हाँ, जावा इंस्टॉलेशन हाँ। हाँ मैम, नहीं किया मैम। नहीं किया है ना? आई कैन वाचिंग। ओके, ठीक है। आई विल जस्ट क्विकली बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आपको पहले तो गूगल पे आप सर्च कर लो जावा डाउनलोड या फिर जेडीके डाउनलोड करो, ठीक है। जेडीके डाउनलोड जब आप करते हो तो स्क्रीन विजिबल है, राइट? आपको दिख रहा है ना? ये सेम विजिबल है। हाँ। मार्च। तो जेडीके डाउनलोड जब आप करोगे तो oracle.com का पहला आपका लिंक दिखेगा, ठीक है। सो इसमें आपको 21, 17, 11 आरक्यू डाउनलोड्स दिखेगा। तो आप इसमें से 11 ले सकते हो या 17 ले सकते हो, 21 की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जेडीके पे जाओगे तो वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन दिखेगी। अभी जेडीके 23 भी रिलीज हुआ है, बट अभी तक उसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप जेडीके 17 डाउनलोड कर लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जेडीके 17 सिलेक्ट करो। सिलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका लिनक्स सिस्टम है, मैक ओएस है या विंडोज है, उसके हिसाब से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें से, मैंने यहाँ पे विंडोज किया है। होप आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है या फिर मैक ओएस है क्या? विंडोज विंडोज ठीक है, विंडोज मैम। ठीक है। तो विंडोज में आप एमएसआई इंस्टॉलर, जेडीके 17 एमएसआई इंस्टॉलर जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ईएक्सी फाइल जो है इसको डाउनलोड करो। ईएक्सी फाइल को अगर आपको डाउनलोड आपने किया तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करो एंड इंस्टॉलेशन
कर दो। बाकी जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही करना है। आप इसको एक बार डाउनलोड कर लो, इसको थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड होने के लिए। अगर आपको नहीं आया तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन while शेयरिंग योर स्क्रीन। जब आप स्क्रीन शेयर करके मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करो हाँ। एंड डबल क्लिक करके रन कर दो, एप्लीकेशन आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे बताओ, यहाँ से आपको जेडीके डाउनलोड करके लेना है। एज वेल एज ओके। इतना डाउनलोड कर लो, फिर बाकी का मैं बताती हूँ। इससे प्रीवियस वर्जन्स भी आपने डाउनलोड किए तो भी चलेगा। 17, 11 to 17 में कोई भी डाउनलोड कर लो। मैम इसको इंस्टॉल करने के लिए जब कुछ उस टाइप का आता है कि जो हमें लैपटॉप के सिस्टम की प्रायोरिटीज में रखना पड़ता है, लाइक टर्मिनल्स को जैसे डाउनलोड करते जब सी के लिए मतलब। मतलब मुझे समझ में नहीं आया हम जैसे इसको। टर्मिनल्स को डाउनलोड करते हैं ना, जैसे सी के लिए टर्मिनल्स को डाउनलोड किया था मैं। सो लैपटॉप के सिस्टम में जाके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में प्रायोरिटीज में रखना था हाँ, कुछ लिंक्स को। सो इसके में भी ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या? एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की जरूरत वैसे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बताऊंगी आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर हम कंसोल बेस्ड प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लगते हैं, बट हम यूज करने वाले हैं इक्लिप्स, तो मैं इक्लिप्स को भी आपको कैसे करना है वो भी बताती हूँ। ठीक है, सो आप गूगल पे डायरेक्टली इक्लिप्स डाउनलोड करो। आईडी है ये। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम प्रोग्राम करने वाले, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वगैरह सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्लिप्स भी डाउनलोड कर लो। जब आपका जावा होने के बाद आप इक्लिप्स डाउनलोड करो। ठीक है, सो दैट इक्लिप्स वो आपका जावा का इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, यहाँ से आप आपके हिसाब से ये वाला 64 वाला है तो वो आप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये डेस्कटॉप आईडी है, इसको आप आपके डेस्कटॉप पे ऊपर इंस्टॉल करोगे तो हम इसको इसी में प्रोग्राम करने वाले हैं, इक्लिप्स में। ओके, तो पहले जेडीके डाउनलोड करो, जेडीके के इंस्टॉलेशन के बाद इक्लिप्स डाउनलोड करो। इक्लिप्स में हम प्रोग्राम करने वाले हैं तो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्टली जावा के सोर्स फोल्डर में, मतलब जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है उसी में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर करते हैं तो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को करना पड़ता है। ओके, बट अभी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आया इंस्टॉलेशन क्या करना है? हाँ मैम, समझ में आ गया। ओके, दोनों इंस्टॉलेशन करके रखो क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए आपको वो लगेगा ना। ओके मैम। तो जेडीके, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके क्या होता है? तो जेडीके एक डिस्ट्रीब्यूशन है जावा टेक्नोलॉजी का, जो ओरेकल कॉर्पोरेशन आपको प्रोवाइड करता है। अभी ओरेकल कॉर्पोरेशन ही आएगा सब जगह पे, सन माइक्रो सिस्टम्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जेडीके में क्या क्या होता है? सो इट इम्प्लीमेंट्स जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, दैट इज नोन एज जेएलएस। ठीक है, जावा लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशंस रिलेटेड कुछ फाइल्स रहेंगे, जावा वर्चुअल मशीन रहेगा जिसके स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, जिसको हम जेवीएम्स बोलते हैं। एंड also it provides standard edition, एसी एडिशन। ठीक है, इसमें एंटरप्राइज एडिशन भी आता है। तो अगर जब आप इक्लिप्स डाउनलोड करते हो तो उसमें एनवायरनमेंट जावा डबल ई का रखना है। ठीक है, जावा एसी का नहीं, जावा डबल ई का रखो, क्योंकि जावा डबल ई आप रखते हो तब आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लगने वाले भी सर्वलेट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। जावा एसी अगर आपने रखा तो सिर्फ आप कोर मैम जावा प्रोग्राम्स कर सकते हो। हेलो। हाँ बोलो। मैम आपका आवाज़ एक्चुअली ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। मुझे आवाज ब्रेक हो रहा है? ओके, तो मैंने बोला कि जब आप इक्लिप्स इंस्टॉल करोगे, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ मैम, अभी क्लियर है। तो जब भी आप इक्लिप्स इंस्टॉल करोगे तो उसमें स्टैंडर्ड एडिशन जावा एससी करके आता है एंड जावा डबल ई करके आता है, ईई। ओके, तो
जावा डबल ई का इंस्टॉलेशन करना, एसई का मत करना, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड एडिशन का किया तो ये स्टैंडर्ड एडिशन सिर्फ और सिर्फ आपके कोर जावा के प्रोग्राम्स के रिलेटेड हेल्प करेगा, जिसमें हम सिर्फ बेसिक प्रोग्राम्स ही कर सकेंगे। अगर आपने जावा डबल ई का एडिशन इंस्टॉल किया, दैट इज एंटरप्राइज एडिशन, तो आप वेब एप्लीकेशंस के जो टेक्नोलॉजीज है लाइक सर्वलेट्स, जेएसपीज, HTML, CSS वगैरह, वो भी आप उसमें प्रोग्राम्स कर सकते हो। ठीक है, सो वो एडवांस के पार्ट में आता है, तो उसके प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो। दैट इज वाई जब भी आप इंस्टॉलेशन करोगे तो जावा डबल ई का करना, जावा एसई का एनवायरमेंट मत लेना। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो इक्लिप्स के इंस्टॉलेशन के टाइम मुझे बताना। ठीक है, ओके मैम। so it provides you the standard edition of Java Application Programming Interface API. So इसमें सारे एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग के रिलेटेड इंटरफेसेस रहेंगे जिसको हम API बोलते हैं, and as well as it contains full copy of the Java runtime environment that is known as JRE. तो इसमें मेन कुछ टर्मिनोलॉजीज है और कुछ कीवर्ड से बोलती हूँ। JRE, API, JDK, ठीक है, ये बहुत बार आपको सुनाई देंगे, बहुत बार आपको स्टडी करते टाइम भी आएंगे। तो ये सिर्फ आपको समझ लेना है कि JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, API स्टैंड्स फॉर जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ JDK। जो आप इंस्टॉलेशन करने वाले हो उसमें क्या क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल सी डिफरेंस बिटवीन जावा एंड अदर लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम देखने वाले सी विथ जावा। तो सी जो डेवलप हुआ है डेनिस रिच ने 1972 में डेवलप किया था। जावा जो डेवलप किया है वो सन माइक्रोसिस्टम में 1991 में डेवलप हुआ था। प्लेटफॉर्म, सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, सो इट इज नॉट वर्किंग, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट राइट वंस कंपाइल एनीवेयर। एंड जावा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसका मेन मोटो है राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, वी say this concept as WORA, WORA, that is write once run anywhere। ठीक है, ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज जो है मिडल लेवल लैंग्वेज है, मिड लेवल लैंग्वेज है, दैट ओवरकम्स द गैप बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, जो ट्रांसलेट करता है कोड को मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जावा सॉरी, सी में कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है कोड को, इंटरप्रेटर सी में नहीं होता। जावा में दोनों होते हैं, कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। द इट परफॉर्म्स कंपाइलेशन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑपरेशंस। ओके, सी में गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, हमें जो भी डेटा, जो भी मेमोरी हमने यूज की है उसको फ्री करना पड़ता है मैन्युअली। बट जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, गार्बेज कलेक्शन करने के लिए वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा गार्बेज कलेक्टर, जिसका काम होता है जो भी अनयूज्ड मेमोरी है उसको फ्री कर देना। एप्लीकेशन और सिस्टम, सी लैंग्वेज में हम एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्रामिंग बोथ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जावा सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, जावा के थ्रू हम सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं करते। सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको डेवलप करनी है तो आप सी यूज कर सकते हो, बट जावा नहीं। सी या C++ लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, बट हम जावा के थ्रू सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज है, उसकी वजह से आप सिर्फ इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हो। सी में 32 कीवर्ड्स है एंड जावा में 50 कीवर्ड्स है। क्या होते हैं कीवर्ड्स वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसे ही जावा एंड C++ का डिफरेंस है, वही हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये जावा हाईली इफिशियंट है रोबस्ट एंड पोर्टेबल एप्लीकेशंस के लिए, C++ जो है इफिशियंट है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। गेमिंग वगैरह जो होता है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा C और C++ में डेवलप होते हैं। गेम डेवलपर्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा C और C++ यूज करते हैं, ठीक है, रादर देन जावा। जावा में भी आप कर सकते हो बट मोस्टली C++ या C में ही गेम डेवलप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, सो सेम विथ एज सी, यहाँ पे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है,
C++ में जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस आप डेवलप नहीं कर सकते हो, दैट इज इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। सिंटैक्स में जावा सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है, एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बट C++ हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो, बट उसका सिंटैक्स फ्लेक्सिबल नहीं है। यहाँ पे रीयूज फंक्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं, रीयूज फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन मतलब मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए आप C++ यूज कर सकते हो। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट जावा में ऑटोमेटिक होता है, जो सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट C++ में मैन्युअली होता है। ठीक है, आपको मैन्युअली करना पड़ता है, आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, पूरी मेमोरी वेस्ट ना हो या फिर जितनी चाहिए उतनी अलोकेट हो। ठीक है। यहाँ पे स्लोअर ऐप परफॉर्मेंस रहेगा एंड फास्टर डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, टाइम टू मार्केट होगा। C++ में हायर ऐप परफॉर्मेंस है बट स्लोअर डेवलपमेंट टाइम्स है। कंपेटेबिलिटी में इजी इंटीग्रेशन विद अदर लैंग्वेजेस, जावा आप दूसरे लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट करके एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, बट C++ के साथ कंपेटेबिलिटी थोड़ी लो होती, लिमिटेड होती है, उसको आपको एडिशनल डिफरेंट एप्लीकेशंस की टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम जावा लोअर हायरिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, C++ में लोअर हार्डवेयर एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट होता है। जावा ज्यादा से ज्यादा यूज होता है गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह के साथ। एंड C++ लैंग्वेज जो होती है वो मोस्टली जो गेमिंग कंसोल के साथ एसोसिएटेड है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है या फिर हार्डवेयर रिलेटेड जो पार्ट्स आए थे उनके साथ, फॉर एग्जांपल इंटेल, नासा, BMW, विंडोज, क्रोम, एप्पल, Call of Duty is the name of the game, right? NVIDIA, which is used for graphic design, ग्राफिक कार्ड्स देते हैं एनवीडिया के। तो हार्डवेयर रिलेटेड जब होता है तब हम C और C++ लैंग्वेजेस को मोस्टली यूज करते हैं रादर देन जावा। जावा आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर डिफरेंस यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सो एज आई हैव सीन, जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो जेडीके में एक्चुअली क्या इंस्टॉल होता है? तो सबसे पहले आपका JRE सिस्टम इंस्टॉल होता है। JRE मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप एप्लीकेशन जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। तो उसके लिए दो पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज द JVM, जो जावा वर्चुअल मशीन है, जो एक्चुअली आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। एंड जावा क्लास लाइब्रेरी, जो आपके प्रोग्राम्स को लगने वाली लाइब्रेरी है। जैसे अगर आपको कोई बुक रेफर करना है तो आप लाइब्रेरी जाओगे एंड वो बुक से आप कंसेप्ट लेके राइट डाउन करोगे, राइट? वैसे ही अगर हमारे प्रोग्राम में अगर ऐसे कोई लाइब्रेरी है हम यूज कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड फाइल्स, वो सारे आपको JRE सिस्टम में JDK के अंदर दिए जाएंगे। एंड जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाला है, वो सारे डेवलपमेंट किट्स, टूल्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे JDK के इंस्टॉलेशन के साथ। सो JDK कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, JRE एंड जावा डेवलपमेंट टूल्स। JRE कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, JVM जिसमें हम एक्चुअल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, JVM अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। So JVM is most important. Java Virtual Machine is responsible for all the things. ये सारे काम करता है आपके, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है, कंपाइलेशन करता है, एग्जीक्यूशन करता है, सब कुछ JVM करता है। ठीक है। एंड इसको जो लाइब्रेरी फाइल्स लगते हैं वो जावा क्लास लाइब्रेरीज प्रोवाइड किए जाते हैं JDK के साथ। अभी जावा डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं? सो कंपाइलेशन के लिए, प्रोग्राम का कंपाइलेशन करना है, प्रोग्राम को डिबग करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, उसके लिए जो भी टूल्स लगते हैं वो सारे आपको जावा डेवलपमेंट टूल्स में दिए जाएंगे। तो जो हमने क्रॉस प्लेटफॉर्म देखा, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, तो उस सिस्टम के ऊपर आपको JVM इंस्टॉल करना पड़ता है। आपने अभी यहाँ पे ध्यान दिया कि नहीं, आई डोंट नो, बट जब आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हो JDK का, ठीक है, तो आप JDK इंस्टॉल करते हो बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म। जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन आप
जेडीके इंस्टॉलेशन करते हो, राइट? तो जेवीएम जेडीके के साथ आता है, जेवीएम जेडीके इंस्टॉलेशन के साथ आता है। तो इसकी वजह से जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है क्योंकि जेवीएम हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, ठीक है? जेडीके हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब हम जेवीएम इंस्टॉल करते हैं, एक्चुअली सिर्फ रन टाइम एनवायरनमेंट भी इसमें इंस्टॉल होता है, ठीक है? तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हो वो प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंट है, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं उसके बेसिस के ऊपर हमने इसको इंस्टॉलेशन किया है। दैट इज वाई जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है? जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जो आप जावा के थ्रू जो एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू में भी इसको पूछा जाता है। रिमेंबर दैट जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जावा एप्लीकेशन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जावा एप्लीकेशन जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करना है, मतलब अगर मैंने यही विंडोज एप्लीकेशन मैंने बनाया, ठीक है, तो इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है लिनक्स लिनक्स सिस्टम के ऊपर। तो लिनक्स सिस्टम के ऊपर मुझे पहले लिनक्स वाला जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। अदरवाइज नहीं, अगर आपके सिस्टम में जेवीएम नहीं है तो आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो जेवीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज वेल एज एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। क्लियर? समझ में आया जावा प्लेटफॉर्म तक? कोई डाउट है यहाँ तक? सारे बात समझ में आ गए, राइट? क्लियर है, राइट? राइट, यस मैम। Okay. So we will end our session with this platform part itself because JVM architecture जो है वो थोड़ा वास्ट है एंड उसको आपको टाइम भी लगेगा एंड हमारे पास अभी उतना टाइम है नहीं। तो जेवीएम आर्किटेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? जब आपको जेवीएम आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा तब आपको प्रोग्रामिंग्स भी समझ में आ जाएगा। वन मोर थिंग, स्टार्टिंग के 1-2 सेशंस या 2-3 सेशंस आपके थियरी ही रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, ठीक है? तब तक आपका इंस्टॉलेशन, आपका सिस्टम आप तैयार करके रखो, क्योंकि पहले थियरी आपको समझ में आया तो ही आप प्रैक्टिकल पे जा सकते हो। क्लियर? And by the way, ma'am, can you share this video? I will share the PDF files with you, ठीक है? Once we complete the मॉड्यूल, ठीक है? जब हम मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तब आपको PDF फाइल इसकी दी जाएगी। क्लियर? Okay. जिसमें ये सारा कुछ रहेगा, थियरी पार्ट उसमें सारा कवर होगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसमें अगर आपको पीपीटीज में और पीडीएफ्स में सेम ही डेटा है, ऐसा कुछ डिफरेंट है नहीं, तो इसकी वजह से पीपीटीज की जगह पे मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें आपको पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा स्टडी करने के लिए। उसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। तो जेवीएम आर्किटेक्चर विल बी द फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है? जब हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो आपको मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो हमारा जो ग्रुप है उस पे ही आपको सेंड कर दूंगी PDF मॉड्यूल 1 का, ठीक है? जैसे जैसे मॉड्यूल्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको फाइल्स में शेयर करते जाएंगे, ठीक है? Okay. Thank Okay, you. thank you, Piyush. We will continue in the next session. Bye. Okay. Ma'am, you may stop recording. Okay, thank you so much, Aditi. Thank you. So, पर हम उसको एज ए रिक्वायरमेंट पूरा पहुंची क्योंकि सर मशीन वाला इस सारा ठीक से बता रही है। मशीन से स्क्रैपिंग तो